नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, I would request you to please subscribe to my channel. This is a pre-market report video for 18 November 2025, that is for Tuesday. In this video, friends, we are going to cover FN analysis, post-market analysis and chart review. We are also going to look at the top gainers and losses, and we'll also look at the technical view outlook and the levels for Tuesday. So needless to say, we will be covering Nifty, Bank Nifty, Sensex, Midcap Index, USD crude and silver levels as well. Now, friends, let us start from market overview. What happened on our market today? That is on Monday. And needless to say that almost all these indices are closed in good positive. Major reason was Bank Nifty. But it was mostly a sideways market, and the premiums were not increasing, and they were just targeting to destroy the premiums only. Let us go to the chart and try to understand. Nifty, see here, and it opened a gap up as expected, a mild positive gap up. From there is an immediate dip, and after that, it started trading about 20 MA and it didn't break. Only one point it tried to break, but immediately with a heavy bullish candle it moved up. Basically this candle was to trap more put bias. When we analyze the FNO data, we'll understand that. So don't short Nifty till the time it is moving above 20 MA. So precisely if you look here, if market breaks below 26,000, then you can try for shorting. You'll get target up to even 25,880. So that I'm seeing. Because support, if it is still at 25,750 only. If a long unwinding happens, it can retest these levels. Okay. In Bank Nifty was the major contributor for this up move today. So, not even one point. Bank Nifty was trading below 50 EMA or 20 EMA. See, one point it broke, but with the immediate strong buying demand, it crossed over 20 EMA. So, for tomorrow, watch 20 EMA. If it is breaking below 20 EMA, then only short. See here, there is a gap as well. If you look here, there is a gap. 58 640, there is a gap. Tomorrow, it is possible that if a long unwinding happens, it can go for this gap filling. So watch for that. Sensex was also in bullish momentum because Bank Nifty and at the after 10 o'clock, IT also started contributing along with the auto. So all these contributors in Sensex up move. Here also Sensex it didn't break 20 at any point. That's the reason I give an update in the Telegram group that we shouldn't short any of this index if it is trading above 20 MA. तो वैसे ही हुआ. तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. एक बार भी मार्केट 20 एम के नीचे नहीं जा रहा तो शॉर्ट ही नहीं बन रहा था. तो मिड कैप में हम लोग देखे तो मिड कैप भी आज ATH मार दिया. तो 14,000 के ऊपर एक बार पहुंच गया. कल भी लेवल वॉच कर लेना 14,000. मेरे हिसाब से कल मिड कैप में लॉन्ग अवॉइड कर लेना. मिड कैप इज रेडी फॉर अ रिट्रेसमेंट. अगर एक बार 20 में तोड़ दिया, आपको अच्छा खासा पॉइंट मिड कैप में मिल सकते हैं. इंडिया विक्स में देखो, दुनिया भर के खेल इंडिया विक्स में. ये देखो साजिश कैसे हुआ. ये करीब 3 बजे से मतलब 245 के पास एक अचानक एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया इंडिया विक्स में करीब 3%. उसके चलते हुए पुट का प्रीमियम इतना बढ़ गया अचानक. और ऑपरेटर का खेल था. ये सारे जितना भी हायर प्रीमियम में रिटेलर को इन लोगों ने पुट बेच दिया. हम लोग आगे जाके एफएनओ चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा. उसके बाद सीधे ड्रॉप कर दिया. तो प्रीमियम ड्रॉप कर दिया, उनको निकालने का मौका तक नहीं मिला होगा. चलिए हम लोग अपना शीट में वापस चलते हैं. तो इंडिया विक्स में मैंने बोल दिया कल हो सकता है इंडिया विक्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी ट्रेड डील का
बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। जब तक अनसर्टनिटी चलेगा, मार्केट को अनसर्टनिटी पसंद नहीं है, तो मेरे हिसाब से इंडिया भी ऊपर जाना चाहिए, देखते रहना। तो यूएसडी आईएनआर में हल्का सा स्ट्रेंथ आया, लेकिन इतना स्ट्रेंथ आया नहीं। तो ये 88 के नीचे जब तक नहीं जाता, इसमें स्ट्रेंथ नहीं माने जा सकते। तो क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकता है, अगर मान लो 80 हायर लेवल पे चलना शुरू किया तो। अगर एक बार ट्रेड डील आ गया, तो देन इट इज पॉसिबल दैट आवर USD INR can reach to 83, even 82 levels. But let us wait for the trade deal announcement. क्रूड में थोड़ा सा गिरावट देखने को, मैंने आज क्रूड का लेवल दे दिया था। आप लोग अगर वो लेवल के ऊपर ट्रेड किया तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। गोल्ड एंड सिल्वर को अवॉइड ही करना है, इसमें अभी थोड़ा वीकनेस चल रहे। तो इम्पोर्टेंट डाटा एंड इवेंट्स हम लोग चेक करते हैं। तो पहले इंडिया यूएस ट्रेड डील का है। सब लोग बोल रहे हैं अभी क्या है, नियरिंग क्लोजर एंड रोल, लेकिन अभी भी कुछ समझौता नहीं हुआ। बेसिकली डायरी सेक्टर और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर अभी भी समझौता नहीं हुआ। जब तक ये समझौता नहीं होते, हम लोग इसको मानते ही नहीं है। आप देख सकते हैं, राजेश अग्रवाल है, कमर्शियल सेक्रेटरी है, उन्होंने बोला है कि जो बीटीए मीन्स बिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के मुताबिक ये लोग फाइनलाइज कर रहे हैं। अभी तक फाइनलाइज हुआ नहीं। तो जब तक ये होते नहीं है, इतना बुलिश होने की जरूरत नहीं, जब आएगा तब बुलिश आएंगे। और सबसे नेगेटिव खबर हमारा मार्केट के लिए, ट्रेड बैलेंस है। ये एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे आ गया, तो ये हमारा मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने नीचे लेवल दे दिया। ट्रेड डेफिसिट गाइडेंस रिकॉर्ड 41.68 बिलियन इन अक्टूबर। ये क्या है, पिछले 5 महीने का सबसे बड़ा जो डेफिसिट नंबर है। एक्सपोर्ट वाज डाउन ऑलमोस्ट 12%। तो ये अच्छा नहीं मार्केट के लिए। तो क्या होता है, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसका जो डिफरेंस है, इसका मतलब है हम लोग सारे चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बहुत ही गिर गया। ये जब पॉजिटिव होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा है। और जब पता नहीं मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, लेकिन ये मार्केट एक बार तो गिरना चाहिए, डाटा अच्छा नहीं है। चलो, हम लोग चलते हैं एफ एन ओ डाटा के ऊपर। मैं इधर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। इंडेक्स फ्यूचर हम लोग चल रहे थे, ज़्यादा कुछ कारोबार है नहीं इधर। लेकिन ये डाटा मिक्स टू बियरिश गई। एफ ए का अभी भी 1.7 लाख शॉर्ट में खड़ा है। रिटेलर और डी ए लॉन्ग में खड़ा हुआ है। इंडेक्स कॉल में भी ज़्यादा कारोबार नहीं दिख रहे। लेकिन प्रोस ने कुछ 14,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया। लेकिन अभी भी क्या है, जो वॉल्यूम कम है इसमें, तो मिक्स टू बियरिश डाटा में इसको कहूँगा। लेकिन इंडेक्स पुट में देखो, रिटेलर ने 1.4 लाख बाई कर दिया। इसके चलते उसका नेट शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 2.84 लाख। और एफ एन प्रोस ने अच्छा खासा पुट सेल करके बैठा हुआ है। तो दिस डाटा इज अल्ट्रा बुलिश डाटा। मिक्स्ड बुलिश में लिखा, लेकिन ये डाटा अल्ट्रा बुलिश है। स्टॉक फ्यूचर में दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड बियरिश, क्योंकि रिटेलर खाली लॉन्ग लेके जा रहे हैं, बाकी सारे लोग शॉर्ट में जा रहे हैं। स्टॉक कॉल में भी रिटेलर अकेला बुलिश जा रहे हैं, बाकी सारे पार्टिसिपेंट शॉर्ट जा रहे हैं। ये भी अल्ट्रा बेरिश डाटा है। स्टॉक पुट में रिटेलर ने लॉन्ग बाई कर लिया, लेकिन अभी भी इसका अच्छा खासा वॉल्यूम है स्टॉक पुट सेल में। और प्रोस ने कुछ 24,000 सेल कर दिए। दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश। तो निफ्टी एक्सपायरी के लिए मैं दो ही डाटा में बुलिश देख रहा हूँ। लेकिन अब समरी करेगा तो रिटेलर्स मिक्स टू बियरिश है, इंडेक्स फ्यूचर एंड इंडेक्स ऑप्शन में, क्योंकि ये डाटा है इसका कारण इंडेक्स पुट का इतना बड़ा बाइंग किया। और एफ एन पोस मिक्स टू बुलिश है। और स्टॉक ऑप्शन में इसका उल्टा डाटा है, रिटेलर मिक्स टू बुलिश है, एफ एन प्रोस मिक्स टू बेरिश है। तो मिक्स डाटा है कल। तो कैश मार्केट का डाटा है, दोनों खिलाड़ी डी एन एफ ए दोनों बहुत नेट बायस। तो दोनों मिला के कुछ 900 करोड़ का बाइंग किया, और उतना सेलिंग रिटेलर और प्रोस ने किया लगता है। चलिए हम लोग टॉप गेनर्स में चलते हैं। टॉप गेनर में बहुत सारे स्टॉक्स है, जितना ऑटो सेक्टर और जो आई टी एच सी एल टेक वगैरह अच्छा खासा मूव दिया। और जितना बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल है, वो सब भाग रहा था। तो कल के लिए क्या देख लेना, आप लोगों को इतने वॉल्यूम्स चेक करना। तो जैसे आप देख सकते हैं कोटक बैंक में। कोटक बैंक क्या है, तो शॉर्ट टाइम के लिए
इसमें बुलिशनेस जारी रह सकते हैं। तो अगर मान लो इसमें डिप आते हैं, आप इसको बाइंग के नज़रिए में कंसिडर कर, लेकिन अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं दिसंबर एक्सपायरी के लिए ट्रेड करना। इतना एच सी एल टेक मैं बता रहा हूँ, और कोई स्टॉक में नहीं। एच सी एल टेक में कोई अगर मान लो अपमूव आते हैं, आप इसको सेलिंग के नज़रिए में भी कंसिडर कर सकते हैं। और एक्सिस बैंक में मैंने, आप लोगों को याद होगा, मैंने फ्राइडे को वीडियो में मैंने बताया था, तो मंडे के लिए मैंने बताया था सेल ऑन राइस का जरिए में आप देख लें। ये इसका सुबह में इसका अप मूव आया था, ये 1260 के पास आके बंद हुआ, वहाँ से किसी ने सेल किया तो कुछ 10-12 पॉइंट मिला होगा। चलिए, तो टॉप लॉसर में देख लो बहुत सारे स्टॉक्स है। अब मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला एशियन पेंट के बारे में, मैंने बोला एशियन पेंट अभी तक बुलिश चल रहा, लेकिन इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस है। तो कल के लिए क्या है, एशियन पेंट्स दोबारा देख लेना, अगर मान लो इसमें और डिप आते हैं आप उसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर करना। बहुत लोग, सारे लोग बोल रहे आपका व्यू क्यों डेली चेंज हो जाते हैं। तो डायनामिक डाटा है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में रहना है आपका व्यू चेंज करते रहना मार्केट के हिसाब से। बाकी जितना भी स्टॉक्स है आप उसमें वॉल्यूम के हिसाब से चेक कर लेना। तो BEL में मैंने बोला आपको, तो इसमें बुलिश मूव आएगा, आया था आज इसका बुलिश मूव, अच्छा खासा बुलिश मूव आया था, अराउंड 432 तक आया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया। लेकिन क्या मीडियम टाइम में ये बुलिश ही रहेगा, इसमें और डाउन मूव आता है आप इसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। और वॉल्यूम्स आप चेक कर लेना, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह में कोई भी बाउंस होते हैं सेलिंग के नजरिए में आप इसको देख लेना। तो फाइनली टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक, तो कल निफ्टी के एक्सपायरी भी हम लोग चेक करते हैं, एक्सपायरी कहाँ हो सकते हैं। आपको शॉर्ट करना है 26,000 के नीचे ही शॉर्ट करना है, वो वही है अब 20 में। तो आपको टारगेट 25,900 तक मिल सकते हैं, लेकिन इसका सपोर्ट बहुत नीचे है 25,750। अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लॉन्ग के लिए 2630 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना, फर्स्ट टारगेट 2690 फॉलोड बाई 26,130, रेसिस्टेंस है 26,100 है। तो मैंने क्लियरली बोल दिया 20 MA के नीचे आप शॉर्ट करना है, और मान लो 26,100 को पास आकर रेसिस्टेंस मिल रहे तभी आप शॉर्ट कर सकते हैं। PCR इसका अच्छा है। बैंक निफ्टी में 5950 के नीचे ही शॉर्ट खोजना है, तो आपको अच्छा टारगेट मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से 58,500 तक भी आपको टारगेट मिल सकते हैं। तो लॉन्ग के लिए आप सोचना है 5950 के ऊपर ही सोचना है। तो फर्स्ट टारगेट 200, मेरे हिसाब से कल आप इसको बैंक निफ्टी में लॉन्ग अवॉइड ही करना अच्छा है। बैंक निफ्टी एक बार अगर 5800 के नीचे चलना शुरू किया तो इसमें बेरिश मूव आ सकते हैं। PCR इसका अभी भी अच्छा दिख रहा है। सेंसेक्स इज शॉर्ट ओनली बिलो 84,950 एंड आई थिंक 20 MA will also come approximately near this level। तो आपको टारगेट मिल सकते हैं 84,500 तक मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 85,100 के ऊपर ही खोजना। तो मेरे हिसाब से कल इसमें ज़्यादा लॉन्ग ढूंढना नहीं है। तो फिर भी मैं लेवल बताता हूँ 85,300 टू 85,500। मेजर रेसिस्टेंस है 85,200। अगर मान लो आपको ये रेसिस्टेंस के पास 85,100 टू 200 के पास अगर रेसिस्टेंस ले रहे और रेड कैंडल बन रहे, बिंदा शॉर्ट करो सेंसेक्स को। PCR अभी भी इसका अच्छा दिख रहा है। मिड कैप में 3980 के नीचे शॉर्ट खोजना है, 3900 तक मिल सकते हैं। मेजर सपोर्ट है 13,850 तक है। अगर एक बार 13,850 अगर ये तोड़ दिया तो इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर हो सकते हैं, 100-200 पॉइंट तक मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 1420 के ऊपर ही खोजना है, फर्स्ट टारगेट 60 तक मिल सकते हैं। 14,100 है इसका रेसिस्टेंस है। लेकिन क्या मेरे हिसाब से इसमें भी मिड कैप में भी लॉन्ग अवॉइड करना ठीक है, क्योंकि अभी ये और बहुत टेरिटरी में पहुंच गया। अगर मान लो सबसे अच्छा ट्रेड ये होगा, अगर मिड कैप 1440 के पास आपको मिल रहे तो बिंदास इसको शॉर्ट करो, 100-150 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो अभी क्या मार्केट बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है, तो एक ट्रेड डील होप और फ्राइडे का जो रैली कंटिन्यूएशन चल रहा है अभी। मेरा व्यू है मार्केट के लिए न्यूट्रल स्टैंड है। मार्केट और ग्लोबल मोमेंटम जिस तरह जा रहे हैं आप उसी डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना। तो आप मार्केट का मान लो अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश खेलना, बेरिश ट्रेंड है तो बेरिश खेलना। तो निफ्टी कैन बी ए स्पॉइलर टुमारो, निफ्टी एक्सपायरी। चलिए हम लोग फाइनली एक निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल के ऊपर भी चलते हैं। हम लोग एक कोशिश यही रहेगा, तो हमारा जो ऑप्शन चेन के मुताबिक कहाँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस मिल सकते हैं। अभी भी क्या 26,000 में अच्छा खासा कॉल रेटर खड़ा हुआ है, और पुट रेटर इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं है। अगर मान लो ये कॉल रेटर हटते नहीं है
तो ये जितना भी ये जो पुट राइटर अगर लॉन्ग अनविंडिंग के लिए चला गया तो मुसीबत खड़ा हो सकती है। लेकिन क्या है जो डाटा का मुताबिक जितना भी ये पुट राइटर है ये बड़े खिलाड़ी लगे, ये लोग हटने वाला नहीं है। अगर ऐसे बात है तो 2640 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं, तो देखते रहना। और सपोर्ट आप देख सकते हैं 950 में, 900 में भी सपोर्ट है, 25 800 में भी रेसिस्टेंस भी, 100 के ऊपर और 200 में भी रेसिस्टेंस भी है। मार्केट जहाँ जा रहे हैं उसी उसी के मुताबिक आप लोग भी अपना ट्रेड सेटअप लगा देना। If you look at the global futures and US futures are going down, including Dow and Nasdaq, and the European markets are in deep red. But because of the Nifty expiry and big players bullish positions, Gift Nifty is showing a gap up. लेकिन क्या है, कल सुबह अगर मान लो ये जो यूएस फ्यूचर्स अगर नेगेटिव है तो ये सारे जो जितना भी गेन है ये सब गिव अप करेगा। तो ओपनिंग ऊपर ध्यान रखना और लेवल के ऊपर ध्यान रखना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। If anyone wishes to join my Telegram group, link is given in the description. And there is no compulsion. If you wish to join, you can join. Thank you.